Good morning, children. Welcome to class 3 computers. So children, in our previous video we were doing chapter 1. So children, in our previous video we were doing book exercise of chapter 1, that is question answer. Question answer में हम question number B कर रहे थे, that is answer the following question. So children, before starting our today's topic, let us revise what we did in our previous video. So children, in our previous video we were doing question number B, that is question and answer. So children, our first question is, what is a computer? So children, till now in class 1 and 2 we have studied many definitions, and now we are going to study another definition. We know about it, but we are going to write the complete thing whatever we have studied about the computer till now. So children, अभी तक हमने पढ़ा है कि computer is an electronic machine. After that children, this definition we had studied in class 2. तो class 2 में हमने पढ़ा था कि computer is an electronic device or a machine. Why it is an electronic machine? Because it runs on electricity. Then children, now you are in class 3, we are going to elaborate the same definition and understand. So children, in this class you will write that computer is an electronic machine that takes information from us or instructions from us and gives the result after processing. So children, computer is an electronic machine that takes instructions from us and gives result after processing. जो कंप्यूटर क्या है आप सभी जानते हो. We have studied in our previous class also that computer is an electronic machine that is made by man. It is man-made machine. So another definition is computer is a man-made machine. Man-made का मतलब होता है वो मशीन जो मैन ने बनाया है. So children, computer is a man-made machine. It is an electronic machine. यहाँ पे man-made क्यों आपको बोल रहे हैं? क्योंकि man-made machine होने के वजह से it totally depends upon man. ये कोई भी काम हमने पढ़ा है कि it cannot perform even a single task itself. वो खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता until or unless you provide information or you give instructions, you give data, you give raw material. वो कोई भी काम नहीं कर सकता. तो यहाँ पे it takes instructions from us and gives result after processing. वो हमसे instructions लेता है, हमसे data लेता है, raw material लेता है, उसके बाद उसकी processing करता है और फिर हमें result देता है. So this is the complete definition which we are going to study in this class. तो हमने पहले भी पढ़ा था children कि वो input लेता है, output देता है. तो input का मतलब हुआ instructions or the data given by us, and output का मतलब हुआ कि the result which it gives after processing. So let us write and understand children. A computer बहुत सिंपल है, बड़ा definition देख के लग रहा है, बट आपने ये समझा भी है और पढ़ा हुआ है. So it is not very difficult to learn. तो फर्स्ट पार्ट आपको आता है, सेकेंड पार्ट को भी आप जानते हैं, इसको सिर्फ समझ के याद कर लेंगे. तो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर बी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर द following, FOLLOWING, following questions, QUESTIONS, question. Now question number 1. Question number 1 है, what is a computer? UTER. So let us write the definition children. आंसर में हम लिखेंगे, we will write computer, COMPUTER. Computer is an electronic machine, MACHINE. अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. सो व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन?
इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन बिकॉज इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है या से चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड हैज़ कम, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, एज इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक। देन चिल्ड्रन, उसके बाद सेकेंड पार्ट वी विल राइट मशीन that takes, TAKES, takes instructions from FROM, from us, that takes instructions from us and AND, and gives result, RESULT, result after processing. सो चिल्ड्रन, अभी तक हमने जाना कि जो ये कंप्यूटर होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये कैसा मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। देन चिल्ड्रन, इट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस। किससे इंस्ट्रक्शंस लेता है? हमसे, यानी ह्यूमन बीइंग से। सो लेट अस अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, computer is an electronic machine. This you have understood. Then second part is children, that takes instructions from us. So computer electronic machine है, as it runs on electricity, it takes instructions from us. जब तक कि हम instructions नहीं देंगे, वो हमसे instructions नहीं लेगा, वो काम नहीं करेगा। तो वो हमसे instructions लेता है and gives result after processing, और उस इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग करता है और हमें रिजल्ट देता है। सो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। सो यू विल लर्न एंड राइट दिस डेफिनेशन। सो चिल्ड्रन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस and gives result after processing. So this is the complete definition of a computer which you are going to learn. Now children, let us understand question number 2. अब question number 2 में हमारे पास है children, question number 2 is what is hardware? So once again children, what is hardware? We have studied that the physical part of the computer, the physical part that is attached to the computer is called hardware. So all the physical parts. Question is what is hardware? HARD, hard, WARE, hardware. What is hardware? So children, in answer you will write all the physical part, PART, part that is attached, ATTACHED, attached to the computer, COMPUTER, computer is called hardware. HARD, hard, WARE, ware. All the physical part that is attached to the computer is called hardware. तो यहाँ पे children, वो सारे physical part which are attached to the computer are called hardware. So children, if you look at a computer, you must have seen there are different parts attached to the computer. आप जब भी कंप्यूटर के को देखते हो, और आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो कि कंप्यूटर बीच में आपका एक मॉनिटर है, उसके अलावा there are several more parts children. For example, you can see CPU, then you can see printer, keyboard, mouse, monitor, speaker. All these are attached in the computer, and these all these parts are called हार्डवेयर. हम इन पार्ट्स को छू सकते हैं और छू करके महसूस कर सकते हैं. तो फिजिकल का मतलब ही है कि जो हमें दिखता है, जिसका आकार होता है, जिसका शेप होता है. तो ये जितने भी चीज़ें कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं, जिसको हम छू करके और देख करके फील कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं. सो चिल्ड्रन, हियर
all the physical part that is attached to the computer is called hardware. So all the physical part that is attached to the computer is called hardware. तो ये है question number 2. I hope you have understood this also, children. Then question number 3, children. In question number 3 you are going to write, I think it is different. Name the 4 hardware devices attached to the computer. So as I told you, there are different hardware devices attached to the computer. You are going to write only 4. So question number 3 का आप आंसर लिखेंगे children. You will write only answer. Answer number 3, name different hardware attached to the computer में children हम आप देख सकते हो CPU. You can write, सबसे पहले okay we'll write keyboard. Then we will write CPU, then we will write mouse, M-O-U-S-E, mouse, and 4th one you will write, children, 4th one में आप monitor लिखोगे, M-O-N-I-T-O-R. All these parts are called हार्डवेयर. इन सारे पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं. तो दीज आर द पार्ट्स विच कैन बी टच्ड एंड फेल्ड, जिसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं. इन सारे पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं. सो ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, एंड दीज आर keyboard, CPU, mouse and monitor. In question number 3 you are asked to write different names of hardware, so you will write these names. Now question number 4, children. Question number 4 में we have data. What is data? Answer number 4 में हमारे पास है data. Data का मतलब है raw information or raw material which we provide to the computer in order to perform any work is called data, and the result which we get, organized and meaningful result which we get after the processing is called information. So children, क्वेश्चन नंबर 4 है. यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में किया था, हमने इसे रिवाइज कर लिया. नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लिख करके प्रैक्टिस करा था. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ऑन विच WHICH, which principle, Principle, principle does DOES, does a computer, COMPUTER, computer works, WORKS, works. So children, मैंने आपको समझाया था पिछली बार कि the principle on which computer works is input, output, input processing and output. Input processing, PROCESSING, and output. So the complete working of the computer depends upon this principle. This is called input output IPO cycle. This is the principle on which a computer works. जैसा कि आपको मैंने बताया चिल्ड्रन, कंप्यूटर इज अ मैन मेड डिवाइस. कंप्यूटर जो होता है ये एक मैन मेड डिवाइस है एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन मैन. ये पूरी तरह से मैन पे डिपेंड करता है. अनलेस एंड अनटिल यू स्विच ऑन द कंप्यूटर इट विल नेवर बी एबल टू वर्क. जब तक आप उसे ऑन नहीं करोगे तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता. और चिल्ड्रन उसके बाद जब तक आप इंस्ट्रक्शन उसको नहीं दोगे इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी वर्क. तो जितने भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम्स होते हैं, दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं. तो यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, वन इज हार्डवेयर एंड द अदर इज सॉफ्टवेयर. सो चिल्ड्रन, हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर अबाउट विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, एंड जो सॉफ्टवेयर होता है, दीज आर द प्रोग्राम्स विच कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट, जिसे हम छू के या देख के फील नहीं कर सकते हैं. ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं जो फीड किए होते हैं प्रोग्राम्स, और ये प्रोग्राम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं और उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो जिसके वजह से हम कंप्यूटर में काम कर पाते हैं. तो हम काम
काम जो करते हैं वह सबसे पहले तो हम इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, डेटा प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद उससे हमें रिजल्ट मिलता है या आउटपुट मिलता है। सो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यहाँ पे इनपुट का I, प्रोसेसिंग का P एंड आउटपुट का O becomes IPO cycle. This is the complete working of a computer. This is the principle on which a computer works. ये एक सिद्धांत है जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है। पहले वो इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद वो हमें रिजल्ट देता है। सो इनपुट का मतलब हुआ डेटा, प्रोसेसिंग इज डन बाय द CPU एंड आउटपुट का मतलब है रिजल्ट। सो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। अब जो इनपुट है गिवन बाय इनपुट डिवाइसेस। वॉट एवर इनपुट इज गिवन टू द कंप्यूटर इज गिवन थ्रू द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं चिल्ड्रन? इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कि आप कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, आप माउस से इनपुट करते हैं, आप माइक्रोफोन से इनपुट करते हैं, आप जॉयस्टिक से इनपुट करते हैं, अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास। आप सभी जानते हो कि जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं, वो सभी हम किसके थ्रू करते हैं? इनपुट डिवाइस के थ्रू करते हैं। देन दैट प्रोग्राम इज टेकन बाय दैट इनपुट इज टेकन बाय द कंप्यूटर। उसकी मैनिपुलेशन होता है या फिर उसका प्रोसेसिंग होता है अकॉर्डिंग टू द नीड, हमारी ज़रूरत के हिसाब से CPU उसकी प्रोसेसिंग करता है। देन वी गेट द रिजल्ट, और ये रिजल्ट के लिए भी वी नीड सम डिवाइसेस एंड दिस रिजल्ट इज obtained थ्रू फ्यू डिवाइसेस विच आर मॉनिटर पे या तो हमको दिखता है, या फिर हमको प्रिंटर से पेपर में हम प्रिंट आउट कर सकते हैं, या फिर चिल्ड्रन हम इस रिजल्ट को सुन भी सकते हैं। अगर सुनने वाली चीज़ है तो हम सुन सकते हैं, दैट इज थ्रू द स्पीकर। सो दीज आर द डिफरेंट डिवाइसेस। सो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, जिसे हम IPO साइकिल कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स इज चिल्ड्रन IPO cycle, input, processing and output. So you will write this much in your answer. The principle on which computer works is input, processing, output. That is called IPO cycle. So this is question number 5. With this children we have come to question number B. Now we are going to do question number C. In question number C children we have fill in the blanks. हमारे पास fill in the blanks है। तो आज का हमारा टॉपिक है fill in the blanks. Let us do. हम fill in the blanks करेंगे। Children fill in the blanks में we have first one is question number C है। C fill 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 in the blanks BLANKS fill in the blanks। तो आज हम करेंगे fill in the blanks। Here first one is children first one all all the physical part, all the physical parts of a computer are called, all the physical part of the computer are called, yes, can you tell children? All the physical parts of the computer are called, what do we call it as? जितने भी physical part computer होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? We call it as हार्डवेयर। तो जो भी फिजिकल पार्ट कंप्यूटर के होते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। सो यू विल राइट हियर HARWARE हार्डवेयर। तो आप इसे लिखोगे हार्डवेयर। नाउ सेकेंड वन चिल्ड्रन, सेकेंड क्वेश्चन इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। डैश इज एन example of dash is an example of a software. Can you give example of a software children? Of a software, SOFTWARE ware. So dash is an example of a
software. So children, all the programs which you have in your computer which help you do one or the other work is called software. तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम है, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, या फिर आपका नोटपैड हो, कैलकुलेटर हो, MS पेंट हो, MS पावर पॉइंट हो, ये सारे प्रोग्राम्स हैं. तो हम सारे विंडोज़ में भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं सब आपके एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर को. तो हियर यू कैन राइट विंडोज. विंडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्टवेयर. विंडो प्रोग्राम जो है वो भी एक एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर का. सो चिल्ड्रन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स 2. फर्स्ट वन इज ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर. जितना भी फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, देन प्रिंटर, इन सबको हम हार्डवेयर कहते हैं. देन वी हैव विंडोज. विंडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्टवेयर. तो ये तो एक हुआ चिल्ड्रन. विंडोज़ हो गया, आपका नोटपैड हो गया, गेम, जितने भी गेम्स होते हैं, कोई भी गेम हो, वो सब आपके सॉफ्टवेयर है. तो ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर. सो दिस इज सेकेंड वन. विंडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. नाउ लेट अस डू थर्ड वन चिल्ड्रन. थर्ड में हमारे पास है third fill in the blanks is the working speed of a computer is very, yes, think and tell the answer. Third one children, the working, third में हमारे पास है the working, the WORKING, working speed of a computer is very, yes, is very fast. FAST, fast. जो वर्किंग स्पीड होता है कंप्यूटर का वो बहुत फास्ट है. दैट इज द रीजन वाई वी यूज कंप्यूटर और दैट इज द रीजन वाई वी हैव मेड द कंप्यूटर. चिल्ड्रन, काम तो हम भी करते थे, ये सारे काम हम भी करते थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करते थे और इससे हम थक जाते थे, हम लगातार काम नहीं कर पाते थे, तो बहुत टाइम लगता था. तो ये सारे रीज़न हैं कि हमने कंप्यूटर को इन्वेंट किया और हम अपना काम कंप्यूटर से करवाते हैं बिकॉज इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट. नाउ फोर्थ वन चिल्ड्रन, द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर आर ऑलवेज द रिजल्ट RESULT, result given by a computer is always dash. So children, as we know, the working speed of a computer is वेरी फास्ट. जैसा कि हम जानते हैं जो वर्किंग स्पीड है कंप्यूटर का, काम करने का स्पीड है, वो बहुत ही तेज है, वो बहुत ही फास्ट है. उसके बाद चिल्ड्रन, द रिजल्ट गिवन बाय अ कंप्यूटर इज ऑलवेज एक्यूरेट. जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर जो भी हमें रिजल्ट देता है वो हमेशा एक्यूरेट रहता है. तो हम यहाँ लिखेंगे एक्यूरेट का मतलब एकदम सही. Accurate. So whatever result we get from the computer is always accurate. इसलिए हम कहते हैं कंप्यूटर never makes mistake. वो कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है. तो जो भी वो काम करता है एकदम सही करता है. So whatever work is done by the computer is always accurate. तो यहाँ हम लिखेंगे the result given by the computer is always accurate. तो आंसर है ACCURATE. So whatever work is done by the computer is always accurate. That means it never makes mistakes. So in the chapter also we studied in the characteristic that computers are very fast, and also we studied that they are very reliable and accurate. So here you will write ACCURATE. So the third one is the working speed of a computer is very fast. The working speed of a computer is very fast. The result given by a computer is always accurate. जो रिजल्ट कंप्यूटर देता है वो हमेशा
एक्यूरेट होता है, वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता. एज वी नो कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक. वॉट एवर वर्क इट डज वेरी एक्यूरेटली. देन चिल्ड्रन लास्ट वन है कंप्यूटर्स आर used to play different types of what? Computers are used to play different types of, क्या play करते हैं? Games. So you will write games. Computers are used to play different types of games. Fifth one where you will write the computers are used to play, P-L-A-Y, play different, D-I-F-F-E-R-E-N-T, different types, T-Y-P-E-S, types of dash games. तो प्लेस का मतलब क्या हुआ? हम क्या प्ले कर सकते हैं? We can play different types of games. Answer is games. So children, with this we have come to the end of this question. Now children, our next question is question number D. Now we will do question number D. Question number D में children we have name any 4 characteristics of computer. As we have studied in the chapter children. Question number D, name N-A-M-E, name any 4. We have studied many characteristics. You will write only 4. F-O-U-R, 4 characteristics of computer. C-O-M-P-U-T-E-R-S, computers. So children, answer में you will write answer 1 में you will write, as we have studied about different characteristics of computer children, under the topic characteristics of computer we have studied that computer works very fast. Then we have studied that it is reliable and we have studied about its reliability and accuracy. Then versatility, storage, multitasking and diligence. तो इनमें से हम कोई भी 4 लिखेंगे. तो सबसे पहला हम लिखेंगे स्पीड. इट इज़ वेरी फास्ट. स्पीड का मतलब इट इज़ वेरी फास्ट. सेकेंड में वी विल राइट चिल्ड्रन एक्यूरेट, A-C-C-U-R-A-C-Y, एक्यूरेट. नहीं, हम एक्यूरेट लिखेंगे. इट इज़ वेरी एक्यूरेट. देन second one you can write storage, S-T-O-R-A-G-E, storage. We have storage, proper storage in computers. हम जो भी काम करते हैं वो हमेशा उसमें हम उसको स्टोर कर सकते हैं. then fourth one is multitasking. आप कोई भी लिख सकते हो. यहाँ पे हमारे पास जितने भी हैं उनमें से आप कोई भी लिख सकते हो. कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही 4 लिखो. इसके अलावा हमारे पास और भी हैं. डिलीजेंस है कंप्यूटर्स में, वर्सेटिलिटी है, ये सारे भी लिख सकते हो. इनमें हमारे पास 6 है. 6 में से रिलायबल है. कोई भी 4 आप लिख सकते हो. तो ये वी हैव रिटन 4, दैट इज स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी. चलो एक्यूरेसी ही लिख देते हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट एक्यूरेसी, C-Y, accuracy and multitasking. So computers, the 4 characteristics of computers are speed, it is very fast, it works very fast. Second is accuracy, whatever it does accurately, बहुत सही करता है, कभी भी गलती नहीं करता. Then storage, whatever we do on the computer can be stored easily children. हम जो भी काम करते हैं उसको फ्यूचर में दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसकी स्टोरेज अच्छी है. देन मल्टीटास्किंग, एक बार में ये बहुत सारे काम करता है. सिर्फ एक ही काम एक बार में नहीं करता, बहुत सारे काम करता है. इसके अलावा रिलायबल है, वी कैन रिलाई ऑन द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर. वर्सेटाइल है, क्योंकि वर्सेटाइल का मतलब है कि सिर्फ एक तरह का काम नहीं करता, ये अलग अलग तरह के काम करता है, मतलब बहुत सारे तरह के काम करता है. सो ऑल दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, आवर क्वेश्चन इज स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, मल्टीटास्किंग. स्पीड का मतलब है कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है. एक्यूरेसी का मतलब है वॉट एवर इट डज इज एक्यूरेट, इट ऑलवेज डू इट्स वर्क एक्यूरेटली.
देन स्टोरेज, जो भी काम करता है द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें और फिर हमको वही काम दोबारा ना करना पड़े। उसके बाद है मल्टीटास्किंग, ये एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है चिल्ड्रन। हम ह्यूमन बीइंग हैं या कोई और मशीन है, एक साथ एक ही काम करती है, लेकिन कंप्यूटर कैन डू मेनी वर्क एट अ टाइम, एक साथ वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। गो थ्रू द चैप्टर, read, learn all the spellings, learn all the question and answer which we have done, and write these question answers in your book itself. So children, कंप्यूटर की कॉपी नहीं बनानी है, मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करा रही हूँ, आप इसको समझ करके और अपने बुक में लिखेंगे एंड याद करेंगे। तो चिल्ड्रन, with this I end the video. We will meet once again with the other exercises in our next video. Till then, thank you.